السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ہم ناول پڑھ رہے تھے خیام، جس کے رائٹر ہیں انم بخاری۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ عربی کو وہ اپنی ہتھیلیاں تخت پر ٹکائے، بالوں کو سیدھا باندھے دوپٹہ اوڑھے اما بیگم کی نشست پر بیٹھی تھی۔ آج اما بیگم اپنے کمرے میں ہی تھی۔ سورج کی دھوپ برآمدے میں پھیلی ہوئی تھی، پسینے کی چند ننھی بوندیں اس کے چہرے پر پھسلتی، اس کے دامن میں گر کے جذب ہو جاتی، لیکن وہ وہاں سے اٹھ نہیں رہی تھی۔ مناہل برآمدے کا پردہ اٹھا کر آئی، کچھ دیر اسے دیکھتی رہی اور پھر آ کر اس کے برابر بیٹھ گئی۔ خیام نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ بہت گرمی ہے یہاں۔ بس ایسے ہی، دل چاہ رہا تھا۔ گرمی میں بیٹھنے کا نہیں، یہ دیکھنے کا کہ اذیت میں ہو تو کیسا لگتا ہے۔ مطلب؟ خیام نے اسے چہرہ موڑ کر دیکھا۔ وہ ساتھ بیٹھی معصوم لڑکی اتنی چھوٹی نہ تھی کہ ان آسان الفاظوں کی گہرائی نہ سمجھ سکتی، لیکن اس حویلی نے اسے باقی تمام عام لڑکیوں سا ہونے ہی نہ دیا تھا۔ اس کی معصومیت اس حویلی نے محفوظ کر لی تھی، اور دیکھا جائے تو اچھا ہی تھا۔ مطلب یہ کہ تم یہ بتاؤ کس کلاس میں ہو؟ خیام نے بات بدلی۔ میرا میٹرک ختم ہو گیا ہے، آج سے 2 سال پہلے۔ آگے نہیں پڑھو گی؟ ایک اور سوال کیا گیا۔ خیام کو وہ جتنی چھوٹی لگتی تھی وہ اتنی تھی نہیں۔ نہیں، اما بیگم کہتی ہیں اتنا پڑھ لینا کافی ہے، یہ پڑھائی اس دنیا میں رہ جانی ہے۔ اپنے لیے کچھ کرنا چاہتی ہو تو اللہ کا علم حاصل کرو، اس سے بہتر تعلیم کسی انسان کے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے ایک مرتبہ کہنے پر شامیر بھائی میرا ایڈمیشن کروا دیں گے، لیکن اما بھی تو ٹھیک ہی کہتی ہیں۔ تمہاری عمر کیا ہے؟ 17۔ خیام ہنس دی۔ کیا ہوا، کیوں ہنس رہی ہو؟ مجھے لگا تھا تم 10 یا 12 سال کی ہو شاید، لیکن تم تو ماشاءاللہ بہت بڑی ہو گئی ہو۔ جی الحمدللہ میں بڑی ہوں، لیکن مجھے سب بچی سمجھتے ہیں اور باتیں شیئر بھی نہیں کرتے۔ مثلاً کون نہیں کرتا؟ نال آپی اور کرن آپی بھی، وہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہیں، لیکن مجھے نہیں بتاتی۔ ہر مرتبہ ایک ہی جواب ملتا ہے، تم ابھی چھوٹی ہی ہو۔ وہ منہ بنائے جواب دیتی خیام کو بہت پیاری لگ رہی تھی، اور اس 17 سالہ لڑکی کا قد بھی کچھ چھوٹا تھا، جس سے اس کی عمر کا چھوٹا لگنا ایک عام بات تھی۔ تم فکر نہیں کرو، میں ڈانٹوں گی دونوں کو اس بات پر۔ اب سے کوئی بات تم سے کوئی نہیں چھپائی جائے گی۔ خیام کے جواب پر وہ ہنسی اور کھڑی ہو کر جس کام کے لیے آئی تھی وہ بتانے لگی۔ اف، میں تو بھول ہی گئی، وہ منال آپی آپ کو بلا رہی تھی۔ تم جاؤ، میں آ رہی ہوں۔ مناہل سر ہلاتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ وہ مزید 15 منٹ وہیں دھوپ میں بیٹھی رہی۔ جب گرمی مزید بڑھتی ہوئی محسوس ہوئی تو فوراً سے وہاں اٹھ کر اندر چل دی۔ وہ اپنے بیٹے کو گود میں لیے بیٹھی تھی، اس کے تمام ضرورت کا سامان شامل لیتا آیا تھا۔ سو سے مشکل نہ ہوئی تھی، لیکن یہ سب اس کے لیے نیا تھا۔ وہ جب بھوک سے روتا تو وہ سمجھتی اسے کوئی چیز چاہیے جو پریشان کر رہی ہے، اور جب وہ کسی اور وجہ سے رو پڑتا تو وہ سمجھتی کہ اسے بھوک لگ گئی ہے۔ لیکن ایک بار جو سچ تھی وہ یہ کہ چاہے سے اسے ابھی اپنا بچہ سنبھالنا نہیں آتا تھا، لیکن وہ بچہ اپنی ماں کی آغوش میں آ کر سکون پا گیا تھا۔ اس کم عمر بچے اور کچے ذہن کے وجود کو نہیں یاد تھا کہ وہ اب تک کس کے ساتھ رہا تھا۔ کمرے کے دروازے پر دستک دے منال کے والد عمران بخاری اندر آئے۔ وہ اپنے بیٹے کو بیٹھ کے ایک طرف لٹاتی دوپٹہ سر پر پھیلائے کھڑی ہوئی۔ ابا؟ عمران صاحب نے آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس کی نظریں اپنے نواسے پر تھی، وہ ہو بہو ان کی بیٹی سا تھا۔ بالکل تم پر گیا ہے۔ منال کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ آپ پکڑیں گے نہیں اسے؟ پکڑوں گا، کیوں نہیں پکڑوں گا؟ آگے بڑھ کر اس چھوٹے سے وجود کو اٹھا کر وہیں بیڈ پر بیٹھ گئے۔ وہ چھوٹا سا بچہ اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا، لیکن کمزوری کے تحت وہ آسانی سے کسی کی بھی باہوں میں سما جاتا تھا۔ کیا نام ہے اس کا؟ اس سوال پر وہ اپنے باپ کو تکنے لگی۔ کچھ دیر پہلے جو مسکراہٹ تھی وہ کہیں کھو گئی۔ کتنی بدقسمت ماں ہوں نا میں۔ ابا، مجھے اپنے بیٹے کا نام تک معلوم نہیں۔ وہ کچھ دیر اپنی بیٹی کو دیکھتے رہے، جو کہ اب اپنے بچے کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں محبت ہی محبت تھی۔ تم بہت خوش قسمت ہو، تم سچ میں خوش قسمت ہو جو تمہاری اولاد تمہارے پاس ہے۔ کچھ بدقسمت مائیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ساری زندگی اولاد سے دور ان کی تلاش میں گزار دیتی ہیں۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں ابا؟ ایک آنسو کا قطرہ اس کی پلکوں سے ہوتے ہوئے رخسار پر بہہ گیا۔ پھر بتاؤ کیا نام رکھو گی اس کا؟ وہ مسکرا کر اپنی بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ ابھی سوچا نہیں، آج سوچ لوں گی تو کل آپ کو بتا دوں گی۔ وہ واپس سے مسکرانے لگی تھی۔ آپ کے دروازے پر دستک دیکھ خیام اندر آئی اور عمران بخاری کو وہاں دیکھ کر اس کے قدم تھمے۔
सर पर फैलाया दुपट्टा मजीद फैलाया। उसमें यह बेहतरी आ गई थी कि अब वो हवेली में सारा दिन भी नहीं घूमती भी, तो अपना दुपट्टा उसके सर की जीनत बना रहता। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाद में आती हूँ, सलाम करती वो मनाल को कहकर बाहर निकलने लगी जब इमरान साहब बोल उठे, वालेकुम सलाम, आ जाओ बेटा, मैं जा ही रहा था। मनाल को उसका बेटा वापस पकड़ाकर वो चलकर हयाम तक आए, उसके सर पर हाथ रखा और दुआएं देते हुए चले गए। उनके जाते ही हयाम की अटकी हुई सांसें बहाल हुई। ये तुम्हारे अब्बा थे? हयाम जब से यहाँ रह रही थी कब किसी मर्द से मिली थी सिवाय शाहमीर। जुबानी कलामी नाम जरूर सुने थे लेकिन मुलाकात का सवाल ही पैदा नहीं होता था। हाँ, मेरे अब्बा। मनाल दरवाजे को देखती मुस्कुराकर बोली। अच्छा, क्यों बुलाया था तुमने? इधर आओ। मनाल ने उसे अपने पास बुलाया। मनाल के बुलाने पर वो चलती हुई उस तक आई और वहीं बैठ गई। अब वो मनाल की गोद में मौजूद बच्चे को देख रही थी। क्या इसे पकड़ सकती हूँ? सवाल किया गया। हाँ, पकड़ो। हमने बहुत एहतियात से वो बच्चा मनाल से लेकर अपनी आगोश में भर लिया। कितना प्यारा है ये, हूबहू तुम सा है। मनाल मुस्कुरा दी। कल से हर कोई उसे यही सब कह रहा था। हाँ, बहुत प्यारा है माशाल्लाह। अच्छा बताओ, क्या नाम रखो इसका? मैं क्या बताऊंगी? तुम बताओ, तुम माँ हो इसकी, तुम्हारा हक है इस पर। तुम भी तो इसकी आनी लगती हो। माँ के बाद दूसरा हक माँ की बहन का होता है। मनाल के कहे पर वो मुस्कुरा दी। आंखों में आंसू लिए अपनी गोद में मौजूद वजूद के छोटे से हाथ थाम कर चूमे। शाहवीर बुखारी। उसके माथे को चूमती वो उसका नाम तजवीज कर गई। बहुत प्यारा है। मनाल ने मुस्कुराकर उसके दिए गए नाम का मान रखा था। ये भी बहुत प्यारा है, आनी का प्यारा बेटा। अब क्या है, हम उस बच्चे को हाथों से झुलाती बोल रही थी जो कि उठ चुका था। उसके हाथों में कसमसाता वो इधर उधर तकने में मसरूफ था, शायद चेहरों को पहचानने की कोशिश कर रहा था। उसका नाम बिल्कुल शाहमीर भाई से मिलता है, बोलने में भी और मतलब में भी। मनाल ने सोचते हुए कहा, मालूम है, इसीलिए तो ये नाम दिया है। तो अब नामों में छुपे मायनों को समझने लगी हो? मनाल ने सवाल किया। नहीं, अब चेहरे पढ़ने लगी हूँ। इसे देख रही हूँ तो लग रहा है कि ये शाहमीर भाई का पुरतोल निकलेगा, बिल्कुल उनसा। चाल भी ऐसे चलेगा, हर देखने वाले का दिल इज्जत करने पर मजबूर हो जाएगा। और तुम क्यों चाहती हो कि ये ऐसा बने? या फिर शामिर भाई साहब? शहजादा है ये, और शहजादों पर यही जचता है कि उनकी शख्सियत साजी यूं की जाए हर एक का दिल उनके एहतराम में झुक जाए। मनाल को चुप देख वो एक मरतबा फिर बोली। उसकी गोद में मौजूद शाफिर अब उसके दुपट्टे से खेल रहा था। क्या सोच रही हो? यही कि मुझे उनके पास जाना चाहिए या नहीं? चली जाओ, हम सब अपनी अपनी अना में बेबुनियाद जंगें लड़ रहे थे। वो उसकी कही बात दोहरा रही थी। तो क्या मतलब, अब तुम्हारी कोई जंग नहीं है उनसे? आयाम ने चेहरा मोड़ लिया। नहीं, मेरी तमाम फौज उसी दिन शिकस्त का सामना कर चुकी है जिस दिन उसके सामने बैठकर आंख से आंख मिलाकर अपनी हकीकत जानी हूं। मेरी अब किसी से कोई जंग नहीं सिवाय अपने। वो शाहवीर को एक तरफ बिठाते दरवाजे तक चली गई जब मनाल ने उसे रोका। सुनो है आम, जब कोई झगड़ा रहा ही नहीं तो शहर वालों से क्या नाराजगी? मेरी मानो तो कर लो बात, उससे पहले कि देर हो जाए और तुम्हारे हाथ सिर्फ पछतावे ही रह जाए। हयाम का दिल एक मरतबा फिर डूब कर उभरा। शायद अब मैं चाहती हूँ कि पछतावे समेट लिए जाए। उसे देखे बिना जवाब देती वो जैसे आई थी वैसे ही चली गई। आज फिर सज सवर कर बैठी थी, लेकिन बस फर्क इतना था कि इस मरतबा वो किसी और की निस्बत से सजी थी। लाल रंग का लहंगा ओढ़े वो इस वक्त अपने कमरे में मौजूद थी। वहां उसकी बहन, माँ और खाला मौजूद थी। शायद उसके निकाह का वक्त हुआ जाता था। उसका भाई मौलवी साहब के साथ चलता हुआ अंदर आया। वो लोग उससे कुछ फासले पर बैठे निकाह के लकबात दोहरा रहे थे। उसने नहीं सुना था कि क्या पूछा जा रहा है। उसने बस अपने समात में कहे दूर बादल हसन का नाम सुना। चेहरे के सामने बादल हसन का मुस्कुराता चेहरा पल भर को अपनी झलक दिखाकर गायब हो गया। वो अभी तक उस तलस्सुम से बाहर भी ना आई थी कि शायद उससे इजाजत मांगी जा रही थी। किसी ने उसके कांधे पर हाथ रखकर दबाव डाला। इसे चेहरा उठाकर देखना चाहा तो वो उसका भाई साथ उसके पास खड़ा था। समात पे बादल का कहा जुमला गूंजा, शादी करोगी मुझसे? बस अगले एक लम्हे की देर थी, उसने 3 बोलकर खुद को बादल हसन के नाम कर दिया। शायद यही उसकी किस्मत थी। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए यही रास्ता तय था। खुदा के हर काम में मसलियत ही रही होगी। उसे अपनी माँ की बेतनाई का दुख भी था। क्या ऐसे भी कभी कोई लड़की दुल्हन बनी थी जैसे वो? बादल की हालत भी उससे जुदा ना थी, उसकी कैफियत भी उसी सी थी। वो वहां मौजूद होकर भी वहां मौजूद ना था। उसका दिल तो गांव में जाती पगडंडियों पर डोल रहा था, तो कभी हवेली की दहलीज पर किसी अपने बहुत करीबी रिश्ते के दूर होने पर मचलता।
मशल ने उसे अकेला ना छोड़ा था। वो लम्हा ब लम्हा उसके बाजू से चिपक कर बैठी रही। अगर उस वक्त वहां हया मौजूद होती तो शायद ये काम वो सर अंजाम दे रही होती। शायद भी, या यकीनन, बादल से भी निकाह के 2 बोल पार्ट इजाजत वसूल कर ली गई थी। निकाह हो चुका था, खुशी का मौका था, लेकिन अपनों की गैर मौजूदगी का दुख ज्यादा बड़ा था। हया मौजूद ना थी, जिसके जान से प्यारे चचा जान और चची भी तो ना शामिल हुई थी। ऐसा ना था कि वो इसके लिए खुश ना थे, बल्कि वजह यह थी कि अपनी बेटी की जात पर उठती उंगलियों का दुख ज्यादा था। वो बहुत देर से जाना था। जो कुछ हुआ और हो चुका था, ना बादल हसन को कौन न जानता था। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि लोग उसकी बहन पर उंगली उठाते और वो ईंट से ईंट न बचा देता। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो भूल गया था। उसे सब याद था, और सब याद रहना था जब तक हिसाब बराबर ना हो जाए। वो सफेद शलवार कमीज पे मलबूस बैठ के टेक से कमर टिकाए बैठा हुआ था। आंखें मूंदे वो फोन पर चलती हुई कोई गजल सुन रहा था। गजल के बोल मध्यम आवाज में गुनगुनाते माहौल में इंतशार बर्पा कर रहे थे। वो लोग अभी भी निकाह से फारिग होकर मलाल को रुखसत करके अपने साथ लिए घर वापिस आए थे। वो किसी भी रस्म के लिए नहीं रुका था, सीधा चलता हुआ अपने कमरे में आ गया। आज का दिन कितना भारी था। गिनती के चंद रिश्तों की मौजूदगी भी कैसे उसको खा रही थी। हर एक की नजर जैसे उसकी एक मासूम सूरत लड़की का नाम बतौर इल्जाम दिख रहा था, सुनाई दे रहा था। वहां मौजूद हर एक की जुबान उसी एक नाम के नश्तर चलाने की ख्वाहिशमंद थी। लेकिन अभी ऐसा वक्त ना आया था, और ना कभी आना था, जब आरज हसन महफिल में मौजूद होता और कोई हया बुखारी के किरदार पर उंगली उठा जाता। गुजरे हुए कल में जो कुछ हुआ था, वो जो हो चुका था, वो अपने हवासों में ना था। लेकिन आरज हसन ने आज खुद से ये वादा किया था, हयाम के खिलाफ बोलने वाली हर जुबान वो काट देगा, चाहे से सामने उसका कोई अपना ही क्यों ना हो। मंजर पर चलती गजल अपने इख्तिताम को आती मुकम्मल हो गई थी। कुछ देर वो यूं ही आंखें बंद किए बैठा रहा, फिर उठकर वजू की नीयत से बाथरूम में जानिब चल दिया। अब उसे सुकून की जरूरत थी, जो कि यहाँ इस दुनिया में मिलना नामुमकिन था, सिवाय कि वो अपने खुदा से हम कलाम होता। वो दुल्हन बने सर झुकाए बादल हसन के कमरे में बैठी थी। उसका जहन मुख्तलिफ सोचों में उलझा हुआ था। वो कितनी मरतबा उसे भावर करवा चुका था कि वो अपनी बहन के लिए एक गलीज लफ्ज बर्दाश्त न करेगा, और ये भी बता चुका था कि वो अपनी बहन के खिलाफ बोलने वाली हर जुबान, हर उंगली तोड़ देगा। और वो उसके लिए पूरी दुनिया के खिलाफ अकेला मर्द भी हो तो खड़ा हो सकता था। न जाने अब उस सब के बाद उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा। वो आने वाले वक्त से डर रही थी। वो अपनी सोचों में इतना उलझी हुई थी कि ये भी ना जान सकी कि वो दरवाजा नॉक करते अंदर आकर उसके करीब, उसके सामने बैठ चुका था। वो कब से उसे देख रहा था, जो वहां होकर भी वहां ना थी। अस्सलाम वालेकुम। वो बादल की आवाज पर वापस अपने हवासों में लौटी। वालेकुम सलाम। उसके चेहरे पर छाए अंदेशों को वो जान चुका था। बहुत प्यारी लग रही हो। वो मुस्कुरा रहा था। परी ने चेहरा उठाकर उसे देखा। क्या वो सच में नॉर्मल था या दिखावा कर रहा था? इंसान शुक्रिया ही कर देता है बेगम। उसका शरारती लहजा परीशे के दिल में इत्मीनान के लिए एक सुकून आबशार बहा रहा गया। शुक्रिया। क्या सोच रही हो? अब वो मौजू पर आ रहा था। कुछ नहीं। तुम ये क्यों भूल जाती हो कि मैं तुम्हारा चेहरा पढ़ सकता हूँ? परीशे का हाथ था मुझसे जुबान। जब पढ़ लेते हैं तो पूछ क्यों नहीं है? उसने अपना हाथ बादल की मजबूत गिरफ्त से आजाद करवाना चाहा, लेकिन ना करवा सकी। चेहरा रूहानसा हो गया। ऐसे करोगी तो मैं चला जाऊंगा। अम्मी ने जो कुछ भी कहा, अब खफा है ना मुझसे? लहजा रूहानसा जरूर था, लेकिन चेहरे पर डर आया था। मैं क्यों खफा आऊंगा? और इन सब में तुम्हारा क्या कसूर? कुछ भी तो नहीं। वो रफ्ता रफ्ता उसके तमाम डर जाहिल कर रहा था। मैं नहीं चाहती थी कि हयाम का नाम किसी भी मामले में। हसन ने उसकी बात काटी। जो होना था वो हो गया, बस इतना याद रखना परीशे कि मेरी दोनों बहनें मुझे बहुत अजीज हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि वो तुम्हारे लिए भी बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे कि मेरे लिए, या फिर उस घर के तमाम लोगों के लिए। वो मेरे दिल में बसती है, लेकिन ये भी सच है कि अब तुम भी। बसल ने एक लम्हा रुककर उसका हाथ अपने धड़कते दिल के मुकाम पर रखा और बोला, यहाँ रहती हो, यहाँ बसती हो, और मैं नहीं चाहता कि मेरे दिल में बसने वाले तमाम प्यारे एक दूसरे से मुंह मोड़ ले। ना नुकसान किसी का भी नहीं, सिर्फ मेरा होगा। और अगर समझा रहा था तो कितना प्यारा समझाता था वो शख्स। और अगर मान से कुछ मांग रहा था तो परीशे रहमान दिलो जान से अपना सब कुछ उस पर लुटाने को तैयार हो गई थी। मशल और हयाम दोनों मुझे बहुत अजीज हैं, आप फिक्र ना करें। परीशे के दिल में उसके लिए मोहब्बत ही मोहब्बत थी। जो शख्स अपने रिश्तों से इस कदर वफादार था, वो अपने हमसफर से वफा निभाएगा तो क्या निभाएगा। उसे खुद पर रश्क आने लगा।
जो मैं इतना फजूल सा शख्स लगता हूं ना सबको। वो प्रीशे को देखकर हंसा। प्रीशे का हाथ अब भी उसके मजबूत हाथों में मुकीम था। मैं बिल्कुल भी आम शोरों की तरह तुमसे प्यार मोहब्बत की बातें नहीं कर सकता, ना ही तुम्हारे हुस्न पर कसीदे पढ़ सकता हूँ। ये दोनों काम हम अपने बुढ़ापे के लिए संभाल लेते हैं। प्रीशे हंस दी। आखिर इससे तो अच्छा ही है कि बाकी बूढ़े मियाँ बीवियों की तरह लड़ने से बेहतर ही होगा कि आखिरी सांस तक एक दूसरे की मोहब्बत में कैद रहे। मैं आज के दिन चाहूंगा कि तुम्हारे साथ पहले ईशा की नमाज अदा करूं और फिर शुक्राने के नवाफिल। क्योंकि थोड़ा सा आगे को झुका और वो पीछे हुई। चेहरा लाल सुर्ख हुआ जा रहा था, शायद हंसने की बदौलत या फिर शर्मो हया के रंग। शरारत से उसका नाक दबाकर वो उठ खड़ा हुआ। मैं जन्नत में अकेला नहीं जाना चाहता। फिर से वही बात, ऐसा नहीं है कि मैं रह नहीं सकूंगा, लेकिन जन्नत में हूरों के लिए क्या ही मजे आएंगे। लेकिन क्या है ना, अब तुमसे निकाह किया है तो अकेला जाता अच्छा थोड़ी लगूंगा। अब ये मेरा फर्ज है कि तुम्हें भी साथ ले चलूं। दुआएं ही दोगी मुझे, तुम गुनाहगार औरत। प्रीशी ने उसे घूर कर देखा तो वो हंसता हुआ बाथरूम में वजू की घर से चल पड़ा। उसके जाते ही वो भी मुस्कुराई उठकर कमरे में मौजूद आईने के सामने खड़ी होकर अपने अक्स को देखने लगी। वो मुस्कुरा रही थी। वो कितनी खुशकिस्मत थी। बेशक अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलियत होती है, और ये सच था कि बादल से अच्छा हमसफर उसके लिए कोई और हो ही नहीं सकता था। एक मरतबा फिर बादल की बाजू से वापस चौंका गई। आईने में खड़ी खुद को ही देखकर बाद में मुस्कुरा लीजिएगा बेगम साहिबा, क्या ख्याल है। वो मुस्कुराकर अपनी ज्वेलरी उतारने लगी और वो पुरसुकून हो गई थी। ये भी जान गई थी कि बादल के हमरा उसकी आने वाली जिंदगी बहुत खुश आइंदा साबित होने वाली थी। उनके रुखसती हुए एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका था। सब अच्छा था, क्यों ना होता। वो दोनों खुश थे, घर में सब ठीक था। सबसे बढ़कर हसन साहब और मुस्तफा साहब के ताल्लुकात एक मतलब फिर बहाल हो गए थे। वो जब से यहाँ आई थी पीछे मुड़कर ना देखा था। वो अपनी माँ से नाराज थी तो हक था उसका, लेकिन वो माँ थी, अपनी जगह तो वो भी ठीक थी। और रही बात बादल की, तो वो रोज हयाम को कॉल करता, वो उठा भी लेती, लेकिन वो उसके लिए परेशान था। हयाम का लहजा उसके कहे लफ्जों का साथ ना देता था। वो अपनी बहन के लिए फिक्रमंद था। उसकी बेचैनी परीशे अच्छे से नोट करी थी। अभी वो बाहर लॉन में बैठा मोबाइल हाथ में पकड़े हयाम को बार बार कॉल मिला रहा था, लेकिन वो थी कि उठा ही नहीं रही थी। गर्मा की धूप हल्की हल्की फैली हुई थी, लेकिन आज मौसम इतना गर्म ना था। धूप के होते हुए भी ठंडी हवा चल रही थी। परीशे चाय के कप उसके सामने रखती बराबर में रखी कुर्सी घसीट कर बैठ गए। आप गाँव चले जाए। क्यों? वो उसे देख रहा था, चेहरे पर हैरत के तासुरात थे। उससे मिले सुकून मिल जाएगा। जहां रहेंगे तो उसके लिए फिक्र से हलकान होते रहेंगे। वो मुस्कुराया। तुम साथ चलोगी? मैं साथ जाकर क्या करूंगी? कुछ भी नहीं, बस मेरे साथ रहना। प्रीशा मुस्कुरा दी। आप इतने दिन से मेरे साथ गुजार कर बोर नहीं हुए? वो खोलकर हंसा। तुमसे बोर हो सकता हूँ? वो उसे महवियत से देखता शायद दिल में उतार रहा था। पीछे से आते अरज और मशल ने पहले इन दोनों को देखा और फिर एक दूसरे को। दूसरे लम्हे हंसी का फवारा छूटा। बादल इस अचानक वफादात पर बौखलाकर उन्हें थकने लगा। प्रीशे अपनी जगह शर्मिंदा सी हो गई। क्या हो गया है? बादल ने ताहट से दोनों को तकते हुए सवाल किया। बोर हो गया हूँ। अरज ने कुछ देर पहले इसके कहे जुमले का मजाक उड़ाया। उफ, मैं भी। मशल भी अरज के साथ शरारत पर आमादा थी। शर्म करो तुम लोग, किसी की बातें सुनने की आदत कब से बढ़ गई है? बादल ने सवाल किया। हम क्यों शर्म करें भाई, छोटे मियाँ? शर्म तो इन्हें आनी चाहिए जो खुलेआम मोहब्बत की महफिल सजाए बैठे हैं। अरज ने भरपूर मुकाबला किया। आय हाय, क्या जिंदगी है हमारी। शदीद सिंगल और ऊपर से ये शादीशुदा लोगों ने दिल जलाने में कोई कसर भी ना छोड़ी है ना परी भाभी? अब के मशल ने अपने रोते हुए परीशे को भी साथ घसीटा। मुझे इन बातों में बिल्कुल ना शामिल करो, समझ आई तुम्हें? परी ने आंखें दिखाते हुए मशल को बाज रखने पर भरपूर कोशिश की। अल्लाह, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। तौबा तौबा तौबा। मशल मसनूई हैरानगी का मुजाहरा करती कानों को हाथ लगाने लगी, जैसे कि उससे शरीफ तो कोई था ही नहीं। वो सब हंसने लगे। इससे पहले कि कोई मजीद कुछ कहता, घर के अंदरूनी हिस्से से नैला बुखारी हड़बड़ाहट में भागती हुई आई। उनके चेहरे के रंग उड़े हुए थे, जबान में लड़खड़ाहट थी। आरस, बादल भाई साहब। आरस ने फौरन उठकर इन्हें अपनी जगह बिठाया और इनके कदमों में बैठता इनके हाथ थाम कर बोलने लगा। चची जान, क्या हुआ है? आरस, हसन भाई की तबीयत बिगड़ गई है, जाओ जल्दी। इन्हें सुनकर बादल आरस अंदर को भागे। मशल भी अंदर जाना चाहती थी, लेकिन उसके कदम भारी हो गए। वो चाहकर भी कदम न उठा पा रही थी, जबकि प्रीशे वो वहीं जमीन पर नैला बेगम के सामने बैठी उनको हौसला देने की नाकाम कोशिश करने लगी।
वो इस वक्त हवेली के बाहरी लॉन में कुर्सी में बैठी थी। आज फिर वो बाहर आना चाहती थी। इनके अंदर घुटन बढ़ती जा रही थी। वो खुलकर सांस लेना चाहती थी। शायद इसलिए आज अम्मा बेगम ने एक मरतबा फिर उसे ना टोका था, ना ही आंख उठाकर घूरा, बल्कि सिर्फ सर झुकाए मिशीर अभी को हयाम के कहे की तकमीर का हुक्म सुना दिया। वो आज भी अकेली ना थी। जब एक मरतबा वो बाहर आई थी तो सादिया उनके साथ थी, जबकि आज शाहमीर उसके साथ था। उसके साथ रखी कुर्सी पर बैठा, निगाहें दूर फूलों पर सजे झूले पर थी। आपने मुझे बताया था ना कि आप मनाहिल और हवेली से पीछे आप शार दिखाने ले जाया करते थे। हयाम ने बिना देखे उनसे सवाल किया। मुझे भी ले जाएंगे? मुझे देखनी है वो। हयाम ने चेहरा घुमाकर उसे देखा, जो यूं उससे फरमाइश पर उसे तकने लगा। हाँ, ले जाऊंगा। कब? जब कहोगी। जैसा सवाल था वैसा जवाब था। आज चले? आज नहीं, आज मुझे जाना है। कहाँ? शहर। शहर? हयाम ने उसके कहे की सरगोशी से अंदाज में दोहराया, लेकिन वह सुन चुका था। तुम्हारे पास इसलिए आया हूं कि किसी चीज की जरूरत है तो बताओ मुझे, मैं लेता हूँ आऊंगा। नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। ठीक है, फिर चलता हूं मैं। वो खड़ा होकर उसके सर पर हाथ रखता हुआ जाने के लिए मुड़ा। अभी 2 कदम ही चले थे कि हयाम ने उसे रोका। भाई, मुझे एक स्याह शॉल चाहिए है, अगर हो सके तो लेते आइएगा। वो उसकी फरमाइश पर सर हिलाता हुआ वहां से चला गया, जबकि वो वहां अभी कुछ देर मजीद बैठना चाहती थी। हसन साहब को हार्ट अटैक आया था। ये पहली मरतबा ना था, लेकिन इस मरतबा उनकी हालत हर मरतबा से ज्यादा खतरनाक थी। डॉक्टर्स उनकी ट्रीटमेंट जो दे सकते थे वो दे चुके थे, लेकिन अभी भी वो खतरे से बाहर ना थे। उनके मुताबिक किसी बात की फिक्र उनको हलकान किए हुए थी। जिस कंडीशन में वो थे, उनके लिए हर फिक्र से आजादी ही उनकी जिंदगी बच सकती थी। शामिर जो शहर में किसी काम से आया था, हयाम की फरमाइश पूरी कर वापस गांव के रास्ते पर जाने को परतोल रहा था, जब बादल ने उसे हसन बुखारी की हालत से आगाह कर दिया। वोल्टे कदमों वापस हॉस्पिटल गया, जहां वो सब घर के अफराद मौजूद थे। निंदा बेगम का रो रो कर बुरा हाल था। नाहला बेगम इन्हें संभालने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। मशल को ऑपरेशन ने बहुत मुश्किल से संभाला, जबकि बादल मुस्तफा साहब के साथ खड़ा था। वो बेटा था, लेकिन साथ खड़ा आदमी अपने सगे भाई के लिए परेशान था। दोनों को बराबर हौसले की जरूरत थी, लेकिन इस वक्त दोनों मजबूर थे। आरस कब से दीवार के साथ टेक लगाए खड़ा था। शामिर उसके साथ खामोश खड़ा लगातार उसे देख रहा था। तो फिक्र ना कर, वो सब ठीक हो जाएंगे। शामिर के कहने पर आरस ने चेहरा मोड़कर उसे देखा। फिर मेरा दिल क्यों यकीन नहीं कर रहा? आरस ने जिस सबके साथ वो लफाज किए थे वो सिर्फ वो जानता था। तेरा दिल गलत सोच रहा है, तो अल्लाह पर भरोसा रख। शामिर ने एक मरतबा फिर उसकी हिम्मत बढ़ाना चाहिए। और अगर खुदा मुझे कहे कि इंसान की जितनी जिंदगी में मैंने लिखी है वो इतनी ही जीता, इससे ज्यादा न एक सांस कम न एक ज्यादा, और तुम्हारे फागे कोई अल्फाज भी ना अदा कर सका। इसकी आंखों में आंसू जगमगाने लगे। सामने मौजूद दरवाजा, जिसकी दूसरी तरफ इसके वालिद जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे, वो खुला और एक नर्स बाहर आई। दरवाजा खुलने की आवाज पर अंदर कमरे से मशीनों की तेज आवाज में बजती टून सुनाई दी। वो किसी खतरे की अलामत थी। वहां मौजूद हर शख्स दिल ही दिल में हर गलत अंदेशे को रद्द करने में लगा हुआ था। आप सब में से आरस कौन है? और मुस्तफा भी? बाहर आने वाली नर्स ने इन्हें मुखातिब किया। आरस फौरन से आगे बढ़ा, लेकिन मुस्तफा साहब के कदम इनकारी थे। मैं हूँ। आप लोगों से पेशेंट मिलना चाहते हैं। अंदर आए, इनकी हालत क्रिटिकल है, लिहाजा एहतियात कीजिएगा। आरस ने सर हिलाता पीछे मुड़ा, मुस्तफा साहब के कांधों से थामता अंदर ले जाने लगा। चलें चाचा जान। वो दोनों अंदर चले गए। अंदर पहुंचते ही दोनों के कदम थम गए थे। सामने बिस्तर पर मौजूद सब कुछ ही घंटों में मजीद कमजोर हो गया था। जगह जगह नालियां लगी थी। हसन साहब ने मुश्किल हाथ के इशारे से इन्हें करीब आने को कहा। वहां मौजूद हॉस्पिटल का स्टाफ मशीनों का मुआयना करने में मसरूफ थी, जिनकी बजती टून अब हल्की हो चुकी थी। आरस और मुस्तफा साहब चलते हुए इन तक आए। मुस्तफा साहब ने आगे बढ़कर अपने भाई के हाथ थामे। आंसू इनके चेहरे को भिगो रहे थे। आप फिक्र ना करें, मैं हूं ना, आप ठीक हो जाएंगे, आराम करें। हसन साहब ने ना सर में सर हिलाते हुए आरस को देखा। चेहरे पर लगा ऑक्सीजन मास्क उतारकर वो मुश्किल बोले, आरस जब मैं यही हूँ, अपने माँ का ख्याल रखना। आरस के आंसू थम गए। अपने बाप के हाथ थामता बोला, अब्बू तुमने वादा किया था मुझसे। अब्बू चुप कर जाए, आराम करे, मैं आपकी सारी बातें मानूंगा, अभी ना करें। मुस्तफा, आरस निकाह करना है। वो मुश्किल अल्फाज अदा कर रहे थे। उनकी सांसें फिर तरतीब हो रही थी। साथ लगी मशीनों की आवाज एक मरतबा फिर तेज हुई। अबू चुप कर जाए। हयाम, बस ये नाम अदा कर। इनकी आंखें बंद हो गई, इनके अल्फाज खत्म हो गए। एक नर्स ने दोनों को जबरदस्ती कमरे से बाहर निकाला। क्या हुआ है अबू को? बशर रोते हुए आरस के बाजू थामे इससे सवाल कर रही थी, लेकिन वो वहां ना था। इनकी निगाहों का रुख दरवाजे की जानिब था, जहां वो अपने सामने अपने बाप को जाते देख कर आया था। एक आखिरी मुलाकात,
नीता बेगम ने अपने बेटे को देखा, जिसके चेहरे पर दर्द की जो तहरीर आया थी वो हर पड़ने वाले की रूह फना कर गई। कमरे से आती मशीनों की आवाज बंद हो चुकी थी। अंदर मौजूद एक डॉक्टर बाहर आया। अब क्या अरस आगे ना बढ़ा था। शामिर ने हिम्मत करके डॉक्टर को मतवज्जा किया। वो अब अरस के आगे ढाल बनकर खड़ा था। डॉक्टर, आई एम सॉरी, हमने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन जो खुदा को मंसूर। शामिर का कंधा थपथपा कर वो डॉक्टर चला गया और वहां बैठे हर अफराद की जान सच में फना कर गया। वो लफ्ज ढूंढ रहा था रस्ते होंठों से। सिर्फ बाप ने बेटे से बात करनी थी। हसन बुखारी की वफात की खबर हवेली के दरो दीवार हिला गई। सब वाकिफ थे सिवाय लड़कियों के। हवेली के मर्द शहर को चल निकले थे। अम्मा बेगम की हालत बहुत बुरी थी। उनको संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था और इन सब से हयाम को आगाह न किया गया था। खालदा बेगम और नफीसा बेगम इस वक्त अम्मा बेगम के कमरे में मौजूद थी। अम्मा, हयाम को आगाह तो करना पड़ेगा, उसका हक बनता है। खालदा बेगम ने अम्मा बेगम के हाथ थामे। उसको भी बता देंगे, बताना तो है ही, पहले मुझे तू अपना रोना तो रो लेने दे। वो रोते हुए जवाब दे रही थी। अम्मा, अम्मा मुझे लगता है मजीद इंतजार नहीं करना चाहिए, उसे शहर के लिए भी निकलना होगा वरना देर हो जाएगी। इस मरतबा नफीसा बेगम ने अपनी कही। हाँ, शहर भी तो जाना होगा उसे। सुन मुशीरा, उसे कह दे उसके साथ जाए। यूं करो, तुम दोनों भी जाओ शहर। लेकिन अम्मा, हम कैसे जा सकते हैं? नफीसा बेगम ने एक मरतबा फिर सवाल किया। हाँ, तुम लोग कैसे जा सकते हो? जाकर हयाम को बुला कर ला। जी बेहतर। नफीसा बेगम उठकर उनके हुक्म की तकमील को चल पड़ी। हयाम को न जाने क्या सूझी थी जो उस वक्त अपने बाबा के कमरे में चली आई। दरवाजा बंद किए वो बैठकर एक कोने में बैठ गई। हाथ में मोबाइल मौजूद था। उसे शदीद घबराहट हो रही थी। वो चाहती थी कि एक मरतबा शहर कॉल करे, सबकी खैरियत ही पूछ ले। मनाल ठीक ही तो कह रही थी उसे, लेकिन वो कोई फैसला ना कर पा रही थी। अभी उसे कोई फैसला ही ना किया था कि उसके हाथों की गिरफ्त में मौजूद उसका मोबाइल बजने लगा। सामने स्क्रीन पर उसकी माँ का नाम जगमगा रहा था। अम्मा, कैसी हैं आप? अपनी माँ से बात करते हुए उसकी आवाज रन गई थी। आंसू कतरा कतरा बहने लगे, लेकिन जवाब उसकी माँ एक लफ्ज न बोली। अम्मा, आप ठीक है ना? जवाब न दार। कुछ लम्हे वो खामोश बैठी थी जब दूसरी जानिब से मध्यम सिसकियों की आवाज उसका सुकून गारत कर रही थी। खैर, सुकून तो उसे पहले भी कहाँ नसीब था। जब तुम इस घर से जा रही थी तो मुझे तभी अंदाजा हो गया था तुम बदल जाओगी, तुम मेरी हयाम नहीं रहोगी। और देखो, तुम वो हयाम हो ही नहीं जिसे मैं जानती थी। माँ को अपनी औलाद की तरफ आने वाली हर मुसीबत का अंदाजा हो जाता है, कहीं बहुत अंदर। मुझे भी अंदाजा था, लेकिन मैं उसे नजरअंदाज करती रही। और देखो तुम्हारे साथ क्या हो गया। मैं तुम्हें जब आखिरी मरतबा देख रही थी घर की दहलीज पार करते हुए, तो दिल यूं ही एक मरतबा ख्याल आया कि उनकी सिसकियों में इजाफा होता जा रहा था। ये क्या अम्मा? हयाम बस एक नुक्ते को घूरती सवाल कर रही थी। उसके चेहरे पर आंसू अपनी छाप छोड़ चुके थे। उसकी पलकें गीली थी, हाँ, लेकिन आंसू थम गए थे। शायद मजीद बहने की इजाजत तलब कर रहे थे। कि तुम बहुत बदनसीब हो मेरी बच्ची, तुम एक दिन खाली हाथ रह जाओगी। तुम्हारे हाथ, तुम्हारा दामन तुम्हारे रिश्तों से महरूम रह जाएगा। हयाम की आंखों में मजीद एक आंसू बहा। उसके दिल में खौफ पैदा हुआ जो रफ्ता रफ्ता उसके पूरे वजूद को दबोच रहा था। अम्मा, सब ठीक है ना? बाबा, उसे अपने बाबा की फिक्र थी। कुछ भी ठीक नहीं, अब वक्त आ गया हयाम, तुम आहिस्ता आहिस्ता अपनी मुट्ठी ढीली छोड़ दो और उसमें क्या तुम्हारे रिश्ते मिट्टी हो जाए, क्योंकि अपने को तुमने खो दिया है आज। हम के अल्फाज इनकारी थे। हयाम तुम्हारे ताया, जिनको तुम अपना बाप कहती थी, वो तुम्हारे इंतजार में, तुम्हारी एक पुकार की ख्वाहिश में दिल में ये मिट्टी हो गए। तुम्हारा बाप तो अभी जिंदा है, लेकिन तुम आज ही यतीम हो गई। वो तुम्हें छोड़कर इस दुनिया से चले गए हैं। हयाम को लगा उसका दिल बंद हो गया, लेकिन अगर नहीं तो हो जाएगा। आ जाओ हयाम, यहाँ सबको तुम्हारी जरूरत है। अब मसीह देर ना करो। फोन बंद हो चुका था, लेकिन हयाम यूं ही वहां बेड पर बैठी थी। फोन कान से लगाए सामने दीवार को देखती वो मासी में खो गई। वो शायद 7 साल की थी। हाँ, यकीनन वो 7 साल की थी। अभी एक दिन पहले ही तो उसकी 7वीं सालगिरह मनाई गई थी। इस वक्त वो अपने कमरे में मौजूद अपने तोहफे खोल रही थी। हर 5 मिनट बाद वो एक तोहफा पकड़ती और सोचती कि खोलूं या नहीं, या फिर खोलूं तो पहले कौन सा। वो फैसला न कर पा रही थी। तंग आकर उसने वो तोहफा खोल कर देखने का सिलसिला कुछ देर मुलतवी करने का इरादा किया और बेड पर बैठ गई। उसकी नजर साइड टेबल पर पड़े एक कांच के डिब्बे पर पड़ी, जिसे देख वो मुस्कुराई। वो जानती थी वो किसकी तरफ से हो सकता था। कांच की लंबी सी डिब्बिया जिसकी चौड़ाई निस्बतन कम थी, यूं जैसे किसी ब्रेसलेट का डिब्बा हो, और उस डिब्बिया में कैद गुलाबी रंग फूल आस्ट्रा मौजूद था, जिसके नाम से वो वाकिफ भी ना थी, लेकिन वो बहुत खूबसूरत था। उसने वो डिब्बिया बहुत एहतियात से खोली।
और फूल को अपने हाथों में लिया। वो तमाम फूल जो वो देख चुकी थी या जिनके मुतालिक वो जानती थी, वो उन सबसे बहुत मुख्तलिफ था। उस गुलाबी फूल के बेशुमार पंखुड़ियां थी जो कि बहुत बारीक थी। हयाम उसे छूने से भी डर रही थी कि कहीं वो टूट ही ना जाए। मुस्कुराते हुए उसने वो फूल वापस से कांच के डिबिया में बंद किया। अभी वो उसे देखते सराहने में ही मसरूफ थी कि उसके ताया उसके कमरे में दाखिल हुए, जिन्हें देख उसकी मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। ताया जान, आप उधर क्यों खड़े हैं, इधर आए। वो मुस्कुराकर उनके पास बैठते हुए बोले, पसंद आया तोहफा? अरे अभी देखा ही कब है? क्यों नहीं देखा? वो उसका माथा चूमे सवाल कर गए। मुझे समझ ही नहीं आ रही पहले कौन सा खोलूं। उसके मासूम चेहरे पर किसी मुश्किल काम को करने के तासुरात थे। ये कौन सा मुश्किल काम है? सब खोलो लेकिन पहले मेरा तोहफा। वो दोनों हंस दिए। हयाम ने फौरन भागकर हसन साहब का तोहफा दिया पकड़ा और वापिस से उनके करीब बैठकर खोलने लगी। तोहफा खोलने के बाद अंदर मौजूद चीज देखकर वो मुस्कुराई। अंदर एक बहुत खूबसूरत सा चॉकलेट का डिब्बा मौजूद था। वो उसे हर मर्तबा सालगिरह पर ढेर सारे खिलौने और शॉपिंग करवाते, लेकिन एक मखसूस चॉकलेट का डिब्बा लाजमी देते। वो मीठा खाने की शौकीन जो हुआ करती थी, हर मर्तबा वो उसे कोई नई चॉकलेट मंगवा कर देते। न जाने अब उसको मीठा क्यों पसंद नहीं था। बहुत शुक्रिया आपका। वो मुस्कुरा रही थी। उसकी इसी मुस्कुराहट पर तो वो जान देते थे। शायद उनकी यही बात आरस हसन ने अपनाई थी। आहिस्ता आहिस्ता उसने तमाम तोहफे खोल दिए। अब बताओ सबसे अच्छा तोहफा कौन सा लगा और किसका? वो जवाबन हयाम ने सब कीमती तोहफों को ठुकरा कर एक फूल से उंगली रखकर उसे सब पर फौकियत दे दी। ये फूल, ये किसने दिया है? जवाब वो जानते थे लेकिन सुनना चाहते थे। आरस भाई ने। हाथ है भाई, ये तुम्हारे आरस भाई एक फूल देकर नाम करवा जाते हैं और हम इतनी कीमती तोहफों के बाद भी किसी का नाम किसी काम के नहीं। वो मुझसे नाराजगी का मुजाहरा करने लगे। ऐसा हो सकता है कि आपका तोहफा मुझे पसंद ना आए भला? जवाबन हसन साहब ने नाम में सर हिलाया। ये बात है कि आप मुझे वो तोहफे देते हैं जो मुझे पसंद है या नहीं या पसंद थे, और वो मुझे वो तोहफा देते हैं जो मुझे हमेशा पसंद रहेंगे। और वो सच्ची तो कहती थी उसे फूलों से मोहब्बत है। उसे आज भी फूलों से मोहब्बत थी। वो वापिस हाल में लौट चुकी थी। कुछ यादें, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान के कच्चे जहन में पक्की छाप छोड़ जाती हैं। ये यादें भी उनमें से थी। उसे याद है कि उसकी सालगिरह के बाद वो हमेशा घर आते हुए इसके लिए फूल लाते। हयाम के आंसू बहने लगे। रफ्ता 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 उसके आंसुओं में शिद्दत आती गई। उसके आंसू किसी आबशार की माने उसका चेहरा भिगोते जा रहे थे। उसके दिल में दर्द भरता जा रहा था। उस कमरे की चार दीवारी में हयाम बुखारी की सिसकियों में शिद्दत आती जा रही थी। उसे याद आया था कि वो माजी में खोकर भी आरस हसन को ना भूल पाई थी। उसकी हर याद आरस हसन से जुड़ी थी। बचपन से लेकर जवानी तक कब, कैसे और क्यों उसका और आरस हसन का रिश्ता बदलता रहा था। कभी मोहब्बत में गुंदा, कभी फर्जी नफरतों और नापसंदगी की नजर, तो कभी शदीद इश्क की चादर में लिपटा। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतने, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, हमें फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।